हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि वेब डिज़ाइन क्या होती है, यानी कि वेब डिज़ाइन के परिचय के बारे में। Web design refers to the aim of websites that are displayed on the internet. It is usually refers to the user skill aspects of website development rather than software development. The whole thing about your website, including the content, the way it looks and the way it works, is determined by the website design. Web design is the process of gathering, planning and constructing of a collection of electronic files that determine the layout, colors, text styles, structure, graphics, images and use of interactive features that distribute pages to your site visitors. Certified web design helps to build your business trustworthy online. यानी कि वेब डिज़ाइन का तात्पर्य उन वेबसाइटों के उद्देश्य से है जो इंटरनेट पर प्रदर्शित होती है। ये आमतौर पर सॉफ्टवेयर विकास के बजाय वेबसाइट विकास के यूजर के कौशल पहलुओं को संदर्भित करता है। आपकी वेबसाइट के बारे में सब कुछ वेबसाइट डिज़ाइन द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे वेबसाइट में कैसा कंटेंट रखना है, वेबसाइट किस प्रकार दिखेगा, किस प्रकार से ये कार्य करेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का परिचय हमें यहाँ पर मिल रहा है। हम यहाँ पे ये जानेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स that use the internet protocol suite TCP/IP to link devices worldwide. It is a network of networks that consists of private, public, academic, business and government networks of local to global scope, linked by a broad array of electronic, wireless and optical networking technologies. The internet carries a vast range of information, resources and services, such as the interlinked hypertext documents and applications of the World Wide Web (WWW), electronic mail, telephony and file sharing. इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली है जो दुनिया भर में डिवाइसेस को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP का उपयोग करती है। यह नेटवर्क का एक नेटवर्क है जिसमें स्थानीय,
सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यापार और स्थानीय नेटवर्क के ग्लोबल नेटवर्क शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्क प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट में सूचना संसाधनों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है, जैसे इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट और वर्ल्ड वाइड वेब WWW, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोनी और फाइल शेयरिंग के एप्लीकेशन। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। यहाँ पे हमें इंटरनेट का इतिहास दे रखा है। अब हम इंटरनेट के इतिहास के बारे में जानेंगे। As you might expect for a technology so expensive and ever changing, it is impossible to credit the invention of the internet to a single person. The internet was the work of dozens of pioneering scientists, programmers, and engineers who each developed new features and technologies that eventually merged to become the information super highway we know today. Long before the technology existed to actually build the internet, many scientists had already anticipated the existence of worldwide networks of information. जैसा कि आप इतनी विशाल और हमेशा बदलने वाली तकनीक के लिए उम्मीद कर सकते हैं, इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना असंभव है। इंटरनेट दर्जनों अग्रणी वैज्ञानिकों, प्रोग्रामरों और इंजीनियरों का काम था, जिनमें से प्रत्येक ने नई सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों को विकसित किया, जो अंततः सूचना सुपर हाईवे बनने के लिए विलय हो गए, जिसे हम आज जानते हैं। वास्तव में इंटरनेट बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के अस्तित्व में आने से बहुत पहले कई वैज्ञानिक पहले से ही सूचना के विश्वव्यापी नेटवर्क के अस्तित्व के लिए प्रत्याशित थे। निकोला टेस्ला toyed with the idea of a world wireless system in the early 90s, and visionary thinkers like Paul Otlet and Vannevar Bush conceived of mechanized searchable storage systems of books and media in the 1930s and 1940s. Still, the first practical schematics for the internet would not arrive until the early 1960s, when MIT's J.C.R. Licklider popularized the idea of an intergalactic network of computers. Shortly thereafter, computer scientists developed the concept of packet switching, a method for effectively transmitting electronic data that would later become
one of the major building blocks of the internet. 1900 के दशक की शुरुआत में निकोला टेस्ला ने एक वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम के विचार से अवगत किया था और पॉल ऑटलेट और वेनेवर बुश जैसे दूरदर्शी विचारकों ने 1930 और 1940 के दशक में किताबों और मीडिया के यंत्रीकृत खोज योग्य भंडारण प्रणालियों की कल्पना की थी। फिर भी इंटरनेट के लिए पहली व्यवहारिक योजनाएं 1960 के दशक की शुरुआत तक नहीं आ सकी, जब MIT के JCR लिकलाइटर ने कंप्यूटर के इंटर गैलेक्टिक नेटवर्क के विचार को लोकप्रिय बनाया। इसके तुरंत बाद कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने पैकेट स्विचिंग की अवधारणा विकसित की, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने की एक विधि थी, जो बाद में इंटरनेट के प्रमुख निर्माण खंडों में से एक बन गई। The first workable prototype of the internet came in the late 1960s with the creation of ARPANET or the Advanced Research Projects Agency Network. Originally funded by the US Department of Defense, ARPANET used packet switching communicate on a single network. The technology continued to grow in the 1970s after scientists Robert Kha and Winton Cerf developed Transmission Control Protocol and Internet Protocol or TCP/IP, a communications model that set standards for how data could be transmitted between multiple networks. ARPANET adopted TCP/IP on January 1st, 1983, and from there researchers began to assemble the network of networks that became the modern internet. The online world then took on a more reasonable form in 1990 when computer scientist Tim Berners-Lee invented the World Wide Web. While it's often confused with the internet itself, the web is actually just the most common means of accessing data online in the form of websites and hyperlinks. The web helped popularize the internet among the public and served as a crucial step in developing the vast trove of information that most of us now access on a daily basis.
का पहला व्यवहारिक प्रोटोटाइप 1960 के दशक के अंत में आर्पानेट या उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी नेटवर्क के निर्माण के साथ आया था। मूल रूप से अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित आर्पानेट ने एक नेटवर्क पर पैकेट स्विचिंग संचार का उपयोग किया। 1970 के दशक में वैज्ञानिक रॉबर्ट कान और विंटन सर्फ द्वारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल या TCP/IP विकसित करने के बाद प्रौद्योगिकी का विकास जारी रहा। एक संचार मॉडल जो कई नेटवर्क के बीच डेटा को कैसे प्रसारित किया जा सकता है, इसके लिए मानक निर्धारित करता है। आर्पानेट ने 1 जनवरी 1983 को TCP/IP को अपनाया और वहां से शोधकर्ताओं ने नेटवर्क को इकट्ठा करना शुरू किया था, जो आधुनिक इंटरनेट बन गया। 1990 में जब कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, तब ऑनलाइन दुनिया ने और अधिक पहचानने योग्य रूप ले लिया। हालांकि यह अक्सर इंटरनेट के साथ भ्रमित होता है। वेब वास्तव में वेबसाइटों और हाइपरलिंक्स के रूप में ऑनलाइन डेटा तक पहुंचने का सबसे आम साधन है। वेब ने जनता के बीच इंटरनेट को लोकप्रिय बनाने में मदद की और सूचनाओं के विशाल भंडार को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य किया, जो अब हम में से अधिकांश दैनिक आधार पर एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर फीचर्स ऑफ द इंटरनेट के बारे में बताया गया है, यानी कि अब हम ये जानेंगे कि इंटरनेट की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, मेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन अ मोमेंट विथ द फास्टेस्ट मेलिंग सर्विस ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड ईमेल, and we exchange the messages with another person through chatting. दुनिया की सबसे तेज डाक सेवा, जिसे ईमेल कहा जाता है, के साथ एक पल में दुनिया में कहीं भी मेल करता है और हम चैटिंग के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के साथ संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग इंटरनेट के हेल्प से अपने किसी भी मैसेज को इजीली और बहुत ही जल्दी हम किसी को अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारी एक तरीके से डाक सेवा का काम करती है, जिसके थ्रू हम बहुत ही जल्दी अपने सूचनाओं का, संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है वो है ट्रांसफर फाइल्स टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड।
हम दुनिया में कहीं पर भी अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि कहीं पर भी हम अपनी फाइलों को स्थानांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एनी रिकॉग्नाइज्ड पीपल, प्रोडक्ट, इंस्टीट्यूशन, कंट्री एटसेट्रा। हम लोग किसी भी मान्यता प्राप्त लोगों, उत्पाद, संस्था, देश आदि के बारे में भी कोई जानकारी खोज सकते हैं। कॉल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। वॉच टीवी एंड कनेक्ट टू पीपल इन जस्ट अ मोमेंट, टीवी देख सकते हैं और बस एक पल में ही लोगों से जुड़ सकते हैं। डू शॉपिंग, खरीदारी कर सकते हैं। डिस्कस एंड रिसीव सजेशंस ऑन आवर प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो कैन सजेस्ट अदर्स ऑन देयर प्रॉब्लम्स। हम हमारी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं और दूसरों को भी उनकी समस्याओं पर सुझाव दे सकते हैं। मेक एन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, और प्रवेश के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। पे आवर टेलीफोन बिल्स एटसेट्रा, हमारे टेलीफोन बिल आदि का भुगतान भी हम कर सकते हैं। एंजॉय मूवीज, म्यूजिक एंड प्ले ऑनलाइन गेम्स, हम फिल्म, संगीत का आनंद भी ले सकते हैं और ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इंटरनेट के विशेषताओं के बारे में बताया गया था, जैसे हम अपने कहीं भी किसी भी सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही शीघ्रता से कर सकते हैं। अगर हमारी कोई फाइल्स वगैरह हैं तो हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी उन्हें भेज सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो या कंट्री हो, हम सभी के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट के हेल्प के थ्रू हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन टीवी देख सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और हम अपने सजेशंस को दूसरों के सामने रख सकते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम्स पे भी अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर हमें एडमिशन वगैरह कराना है तो उसके लिए भी हम आवेदन कर सकते हैं। हम टेलीफोन के बिल्स पे कर सकते हैं, मूवीज, म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं और ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं। यहाँ पे भी हमें फीचर्स ऑफ इंटरनेट के पिक्चर्स में और भी फीचर्स बताए गए हैं, जैसे सेफ्टी, एनर्जी, एक्सप्रेसिंग, इंटेलिजेंस, कनेक्टिविटी और सेंसिंग। तो यहाँ पर भी ये फीचर्स हैं जो कि हमें इंटरनेट के दिए हुए हैं। हम इन विशेषताओं के साथ इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो हमने आज फीचर्स ऑफ द इंटरनेट तक पढ़ लिया है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।